started, almost everybody was feeling bit, nervous to see that how we would be able to uh, choose the right options there, attempt the right queries. See that these are like that. Way to come and are very helpful to give you the score of marks in your, test. So no issue at all. Even if you have, even I've made one mistakes there in my question there, and that is to be eradicated today as well with the explanation. And that question was also, that question also gave you a mark there. That was cancelled. So it's quite easy and it's quite wonderful experience. We have been, doing. We have been enjoying it, and you have been learning. And learning is what I have already, talked a lot. That if you continue to be determined, continue to be consistent and constant in your approach towards the learning, you will never get disappointed because you are punctually doing something good. You are regularly doing something good, and you have made it your routine or hobby there. So when you have such values in your life, no matter even if you make the mistakes, but such space, such vacuum, or such lake can easily be filled in there. So it's really a good fulfillment. I say it's not careless one, useless one, or whatsoever you are doing totally is going totally. It's going to end, with nothing. It's not at all. It's a very fruitful journey you have embarked upon. You have followed. You are, you are going to pursue. So it's really important one there. While just having, one or two mistakes there, such minor things should not disappoint you. Are the mistakes that you make are the marks you make, low score of marks you have in your such, attempts, such rehearsals. These are actually the drills or exercise sort of the, exams or the test, and they will actually guide you. They actually tell you in advance that you have these things. You have these weak things, are the weak areas there. You need to improve or to rectify your mistakes there. So they should, I think, happen at all before the process or before the real exam is tested or conducted. You should have such, participation. You should have such, caution or indication or, such errors should come up, should occur in your test. Because if you don't have that such errors in your test, how can you come across, or how can you rectify them or choose them correctly in your real exam? Okay, so I say really these all mistakes are blessings. These are very positive mistakes, and to me these mistakes are stepping stones. These mistakes are just like, stair or the ladder, and you are climbing up to reach the success. Okay, reach the prosperity of your achievement there. So these are valuable mistakes. And you should not get disappointed by virtue of the mistakes, at getting low score of marks, because you are actually, making wide ground, okay, or wide, platform to get something positive on there. The success of the achievement. So don't worry at all having the mistakes in the test. It means you have lost everything. You have been failed, or you won't qualify for the test, or you have been excluded from the race of the competition, or you have been less efficient, or less, capable. Not at all. These mistakes never damage your potential. Okay, these mistakes are the errors. Never, never trouble your errors. Okay, these mistakes never interrupt your spirit, or the achievement you have been longing or desiring for a very long time. So these mistakes never block, never interrupt, never slow down, any of the useful things there. So it doesn't matter at all. So recover yourself, restore yourself, reconnect yourself, relive with the aim, or with the morale to continue. Okay, continue this journey with full spirit, with zeal. Okay, with strength
and hopefully you will be in the same pipeline of your success. These mistakes are really, I mean, key mistakes which actually come to indicate that please now remove these errors. These are the errors which happen to be barriers or blockage on your way to reach the success. So clean them, clean them, remove them. Okay, you will reach your success. It is what the mistakes come to tell you in advance. Right now we have last day's test. तो जो कल की हमारी टेस्ट थी ये वाली, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ जल्दी जल्दी से। जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस था, अब देखो मैंने आपको कहा कि कीवर्ड्स जो होते हैं टेंसेस के अंदर, या मतलब हमारे लैंग्वेज के अंदर, या ये जो ग्रामर का या वैसे कोई भी पेपर होता है, तो उसके अंदर कीवर्ड्स जो होते हैं वो हिंट्स के तौर पर, क्लूज के तौर पर आकर और हमें एक कॉन्सेप्ट देते हैं, और जिस बुनियाद पर हम अपने ये सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है आप देखो, एवरी ईयर लिखा हुआ है, जो मतलब रेगुलरिटी को शो करता है, जो बार बार होने को शो करता है, जो देखो मतलब रूटीन को शो करता है। तो इसीलिए हमने इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब इस्तेमाल किया है, यानी गेट्स इस्तेमाल किया है, कीप बनाई हुई है, चिकन गेट्स इस्तेमाल किया है, क्योंकि एवरी ईयर को देखकर हमने गेट्स इस्तेमाल किया है। समझ में आई बात? एवरी ईयर जो वर्ड है इसको देखकर हमने, हालांकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा है और बाकी ये तो बिल्कुल बहुत मतलब इनकरेक्ट है, लेकिन बी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है और ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो उसमें जो राइट ऑप्शन आपका हो रहा है वो कौन सा है? बी है, एवरी ईयर। मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आज कोशिश करेंगे कि पास्ट टेंस से स्टार्ट कर ले, नहीं तो कल मतलब पास्ट टेंस जो वो हम मतलब पास्ट सिंपल टेंस से स्टार्ट करेंगे और बाकी पास्ट टेंसेस भी। उसके बाद नंबर 2 देखो, मतलब ए व्हाट डू दीज ऑर्गेनाइजेशंस डू, ठीक है ना? तो इनके अंदर भी आप देखो, एक तो प्लूरल है, ऑर्गेनाइजेशंस देखो प्लूरल है, तो हमने प्लूरल वर्ब से ही मतलब क्वेश्चन किया है, व्हाट डू दीज ऑर्गेनाइजेशंस डू, तो प्लूरल वर्ब से हमने कर लिया है। अच्छा, उसके बाद आप देखो बाकी जो ऑकवर्ड ऑप्शंस है, बहुत बहुत ऑकवर्ड ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ये टेस्ट थोड़ी बड़ी है, मेडिकल के अंदर तो क्वेश्चंस कम होते हैं, ये मतलब पूरा पेपर है, इसको थोड़ा सही नमूने से देख लो। तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर ये मतलब एक जनरल अकरेंस की बात हो रही है, और कोई ऑप्शन इसके अंदर सूट नहीं कर रहा है। फिर हम सेंटेंस नंबर 3 को देखेंगे, आई वर्क एवरी डे। तो देखो यहाँ पर एवरी डे देखो मतलब की भी है हमारी और की वर्ड भी है यहाँ पर, इसीलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो ये पूरे बाकी जो टेंसेस हैं जो प्रैक्टिस हो रही है आपकी, प्लीज आप वापस से इन चीजों को देख लो कि जो सेंटेंसेस आपने अटेम्प्ट नहीं किए या आपसे नहीं गुजरे, तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगे, मतलब फाइनल जो रिव्यू हमारा वो भी हो जाएगा। तो आई वर्क एवरी डे, क्योंकि एवरी डे जो है वो की लिखा हुआ है, इसीलिए मतलब हमारा ये सही होगा। उसके बाद हम 4 पे आते हैं। अब 4 में भी इसी तरीके से आप देखें, ये जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये तो सही है। शी इज वरीड बिकॉज शी डोंट हैव हर होमवर्क। भाई शी के साथ डोंट तो होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है। अच्छा, फिर देखो शी इज वरीड बिकॉज शी आरेंट, देखो शी के साथ आरेंट तो नहीं होगा क्योंकि शी सिंगुलर है और हम आरेंट कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी इज वरीड बिकॉज शी डजंट। अब देखो कितने मतलब आसान है, और बहुत आसान जो है वो मतलब ऑप्शंस या सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर शी इज वरीड बिकॉज शी डजंट हैव हर होमवर्क। और आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये चीज आपको जहन में होनी चाहिए, जब हम नेगेटिव करते हैं तो देखो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो शी डजंट हैव हो जाता है। अगर हैव होता है, सपोज ये होगा, पहले क्या होता है? पहले ये होता है ये शी हैज, ठीक है, ये शी हैज होता है। तो शी हैज होता है तो शी डजंट हैव, क्योंकि इसको जो है वो नेगेटिव करते हैं, ये नहीं डजंट से करते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब तक इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो ये फिर क्या हो जाएगा? शी डजंट हो जाएगा। समझे? हाँ, अगर हम नोट कब इस्तेमाल करते हैं? देखो नोट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखो शी हैज नोट, ठीक है, शी हैज नोट टेकन,
अ बुक। ठीक, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन शी हैज अ बुक। अब देखो ये आपका ये ने क्या हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो शी डजंट हैव अ बुक ये भी कर सकते हैं, या शी हैज नो बुक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, शी हैज नो बुक भी कर सकते हैं। ये देखो आपका राइट हो जाएगा, शी हैज नो बुक, शी डजंट हैव अ बुक। ठीक है, तो आप ये भी मतलब देखो कर सकते हैं। तो ऊपर जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर देखो शी डजंट होगा क्योंकि और हैव आ जाएगा, फिर हैज नहीं आएगा। फिर देखो मतलब हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि डजंट के बाद हैज आएगा। उसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज पे देखो यानी अब सेकंड पेज है आपका। हाँ, एक मिनट। सेकंड पेज पे आते हैं। तो ये तरतीब से चाहते हैं कि तरतीब से ही मतलब चले। और तो ये देखते हैं कुछ, हाँ करीब आ गया। तो उसके बाद देखो मतलब द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, क्योंकि अब इसमें आप बोलेंगे की कौन सा है। इसमें देखो जो की वर्ड है वो एक्चुअली है मतलब वांट, यानी नॉन स्टेट मतलब नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, और जिसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और कल देर देर से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे सर प्रोग्रेसिव क्या है, स्टेटिव क्या है। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास शायद कम लेते हैं, यहाँ मतलब उस वक्त क्लास में सुनते नहीं है, और फिर पेपर के वक्त मतलब ये बातें करते हैं। तो मतलब उनके और भी काफी काम होते हैं जाहिर है, पढ़ने के अलावा भी और काफी काम होते हैं। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम भी जो वो टेस्ट में जाकर इसको क्वालिफाई करेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता। तो हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक, देखो ये नॉन प्रोग्रेसिव है और स्टेटिव वर्ब है, इसीलिए देखो कंटिन्यूस नहीं बनाए, और यहाँ पर कंटिन्यूस किए हुए, ये मतलब गलत हो गया। उसके बाद 10 नंबर सेंटेंस जो हमारा है यानी ये सिचुएशनल सेंटेंस है। देखो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट देखो, इसकी सराउंडिंग जो है कॉन्टेक्स्ट की उसको देखो। हियर आर योर शूज, आई हैव जस्ट क्लीन देम, तो मतलब वो सामने चीज पड़ी है, ये लो आपके शूज, मैंने अभी इसको क्लीन किया, तो मतलब वो वहीं पे बात हो रही है, उसके सामने ये सारी चीजें। तो इसीलिए देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हियर आर योर शूज आई जस्ट क्लीन देम। तो यहाँ पर देखो ये रेगुलर एक्शन नहीं है, वो तो सामने उसको प्रोवाइड कर रहा है थोड़ा, मतलब खुद ही सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा है, इसीलिए वो क्लियर होगा। और फिर अगर हम यहाँ पर हैव भी लगा ले, ठीक है ना, आई मतलब हम लगाए इधर आई जस्ट, जो वो आई हैव जस्ट क्लीन, आई तो वो हो गया। लेकिन अगर जस्ट इधर इस्तेमाल करें हम तो मतलब वो भी इतना करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे आई जस्ट हैव क्लीन्ड, अगर हम ऐसा करें, आप क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर उसको हम इस तरीके से लिखें कि आई यानी जस्ट हैव क्लीन्ड, तो ये भी मतलब हाँ फोकस तो होता है, लेकिन ज्यादा करेक्ट ये होता है। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखो ना, आई ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई हैव ऑलवेज बोलते हैं, हम नहीं ये बोलते हैं कि आई ऑलवेज हैव, या आई हैव ऑफन बोलते हैं। देखो आई हैव ऑफन बोलते हैं, या ऑफ्टन जो बोलते हैं, ये नहीं बोलते हम कि आई ऑफन हैव। तो इसीलिए ये राइट मतलब देखो आई जस्ट हैव, ये मतलब आमतौर पर नहीं लिखा जाता, कहीं कहीं पे एक को जुमले बिल्कुल स्टूडेंट ग्रामर वगैरह में भी आपको नजर आएंगे जो लिखेंगे इधर, लेकिन मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे हम। ये एडवर्ब्स फ्रीक्वेंसी या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। अच्छा उसके बाद देखो मतलब यूरोप में बारिश बहुत होती है, तो यानी ये रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, तो इसीलिए इधर डी आ रहा है, इट रेन्स अ लॉट। डी जो है हमारा ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन हो गया। बाकी इट रेन तो होगा नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट, इट इज रेनिंग होता तो भी मतलब चलो हम
समझ गए कि भाई चलो मतलब हो रही है अभी, उस पर थोड़ा आगे हो सकता है। ठीक है ना, इट हैज रेन, मतलब ये भी देखो नहीं हो रहा। हाँ, अगर इट हैज रेन वगैरह कोई इसका नाउन बना लेते हैं तो फिर तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये डी ऑप्शन इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ का है, ये तो हम कर करके आए हैं। देखो डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट है, जो मतलब ट्रूथ की बात कर रहा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है। 12 नंबर सेंटेंस हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद तो ये आसान है, इनको एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं, तो आके फिर आपकी अगर कोई चीज प्रॉब्लम कर रही हो तो वो भी क्लियर हो जाए। फिर नया टेंस जो है वो स्टार्ट कर दे, यानी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसको ही पास सिंपल टेंस जो है वो हम फिर स्टार्ट करनी। हाँ, ये तरतीब के हिसाब से मैं देख रहा था पहले। अच्छा, तो ये देखो, इसमें भी देखो कीवर्ड दिया हुआ है, कितना आसान है। बस यही होते हैं टेंसेस के अंदर। बगैर देखो ना, टेंसेस तो टाइम शो करते हैं, तो उनके अंदर कीवर्ड्स तो आएंगे तब पता पड़ेगा ना। अगर नहीं आएंगे तो हम कैसे पता पड़ेगा कि भाई पता नहीं किस टेंस का होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आई केम, आई कम, आई हैव कम, ठीक है, आई एम कमिंग, आई विल कम, ये सारे सही है, सारे सही है। देखो, आई कम, आई केम, आई हैव कम, आई विल कम, आई एम कमिंग, मतलब ये इनमें से जितने भी टेंसेस आप लगाओ, बाकी भी जो रहे रहे हैं, सब सही हो जाएंगे। और मैं आपको बोलूं चारों जुमले देकर, आई कम, आई केम, आई हैव कम, आई विल कम, बताओ इनमें से कौन सा सही है। मैं आपसे पूछूंगी बताओ इनमें से कौन सा सही है, तो भाई इनमें सारे सही है। पता ही नहीं पड़ रहा। देखो कोई ऐसा कीवर्ड, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दी हुई है जिससे हम करेक्ट ऑप्शन को पॉइंट आउट कर सके, राइट ऑप्शन को मतलब डिसाइड कर सके कि कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। तो ये चीजें मतलब कहीं पे अगर टेस्ट में ऐसे मतलब जुमले रखते हैं तो ये मतलब मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये मतलब ऐसा ही होता है, कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है या कीवर्ड होता है, उसको देखकर जो है वो फिर स्टूडेंट राइट ऑप्शन चूज करता है। तो अब मैंने जो चार सुनाए, अब आप देखो, तो इसीलिए आप जो जो देखो ये कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल आपको पूरी सिचुएशन नजर आ रही है। अब एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ है, दे डू नॉट टेक शॉवर एवरी मॉर्निंग। डू नॉट क्यों लगा है? इसीलिए लगा है कि मतलब एवरी मॉर्निंग दिया हुआ है, रेगुलर है, हैबिचुअल है। टुक नहीं आएगा, मतलब सेकंड फॉर्म है। टेक्स वगैरह बिल्कुल फजूल है, ऑप्शंस कोई पे बात करना हमारा टाइम जाता है। 6 नंबर देखो, रिसेंटली, वो कीवर्ड्स आपको दिए। रिसेंटली का दिया, मतलब हमने कीवर्ड दिया है, दिस वीक, बिफोर, इससे कीवर्ड्स आपको नहीं दिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। मैंने कीवर्ड्स दो रखे हैं। अब वो कीवर्ड्स आप सामने रखना प्लीज, जो पास्ट के लिए भी रखे हैं हमने, और अब पास्ट पढ़ेंगे तब भी आपको कीवर्ड्स के भाई पास्ट का कौन सा फिनिश टाइम होता है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना, तो फास्ट क्लियर हो जाएगा बस। तो जो टाइम मतलब फिनिश नहीं हुआ है, उस टाइम के साथ देखो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिसेंटली दे बोथ अ न्यू कार, या ये इस टाइम का भी नाम है, इस टाइम का भी नाम है। इस टाइम का नाम क्या है? ये इनडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन। क्या? ये जो रिसेंटली नंबर 6 लिखा हुआ है, ये इनडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन है। रिसेंटली, रिसेंटली इनडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन, समझे? तो इनडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर इनडेफिनेट, एक डेफिनेट होता है, दूसरा इनडेफिनेट होता है। अब इनडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन देखो, बिफोर हुआ, एवर हुआ, नेवर हुआ, जैसे रिसेंटली हुआ, ठीक है ना। ये जो मतलब टाइम एक्सप्रेशन है ये इनडेफिनेट है, क्योंकि इनमें से पता ही नहीं पड़ रहा, तो वो परफेक्ट में इस्तेमाल हो जाएंगी। और डेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन होता है जिसका टाइम का नाम होता है, जैसे येस्टरडे हुआ तो अब डेफिनेट हो गया, पता पड़ रहा है। 2012 हो गया, पता पड़ रहा है। येस्टरडे लास्ट डे हो गया, देखो पता पड़ रहा है। तो वो डेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप
इनडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो रिसेंटली मतलब ये ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो रिसेंटली दे हैव बोट अ न्यू कार, क्योंकि इस टाइम में से कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 7 देखो, प्लीज बी क्वाइट, आई एम लिसनिंग न्यूज। तो बी क्वाइट मतलब एक सिचुएशन है। मिसाल के तौर पर अभी आप में से कोई एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कुछ कर रहा है, एरुलेंट बात जो हो रही है या एरुलेंट कोई काम हो रहा है जो हमारी मतलब पढ़ाई से ताल्लुक नहीं रख रहा, तो जाहिर है मतलब ऐसा ही हम बोलेंगे आपको। या नॉइज करते हो आप, या कोई डिस्टरबेंस हो रही है, तो देखो मतलब यही होगा, कंटिन्यूस की बात होगी, क्योंकि इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ये काम कंटिन्यूस होता है। अच्छा, उसके बाद ये मुझसे इस सेंटेंस में आप मतलब एरर हुई, जो कि मैंने गलत दे दिया इधर, और फिर मैंने करेक्शन करवा दिए इधर, तो करेक्शन करवा दिए और आपको एक मार्क भी दे दिए। तो इधर देखो, यहाँ पर ये जो आपको याद होगा, हमने एक बात पढ़ी भी है कि मतलब WH वर्ड्स जो आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के, यानी लेफ्ट साइड पे मतलब जो एंटीसीडेंट होता है उसको देखकर हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब एंटीसीडेंट देखो आपका प्लूरल है, प्रोफेसर से, तो यहाँ पर हेज तो नहीं आएगा, हेज नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है वो आ जाएगा। अच्छा, तो 20 सेकंड सही है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब आ गया, सीम। हमने एंटीसीडेंट को देखा, ठीक है। ही इज वन ऑफ दोज प्रोफेसर्स हु सीम डिस्ट्रैक्टेड, और टेंस प्रेजेंट टेंस हो गया most of the time. So see that professors are always like so, because the lot of crucial responsibility. Okay, they are always I mean they always travel with such a responsibility, or they have everything in their mind. So it happens so with them. It doesn't matter at all. Instinctively they have such traits, okay, such instincts. अच्छा, फिर ये मतलब हो गया इज वन ऑफ दोज प्रोफेसर्स हु सीम डिस्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है और पास्ट है, इसलिए नहीं बन रहा। यहाँ पे मैंने सीम दिया था, जो कि मतलब गलत था, जो टेस्ट में जो था वो सीम दिया था, सीम्स पढ़ा है, अब ये चेंज हो गया, अब इधर चेंज पढ़ा है, तो इसीलिए ये 20 सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि एंटीसीडेंट जो है ना वो प्लूरल है। अब प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे आपके मतलब जितने भी आ रहे हैं उसको करते चलते हैं, क्योंकि तरतीब में नहीं रखा हुआ ये। अच्छा, the aid agencies they ship 2000 tons of food to the refugees since May। तो कीवर्ड लिखा हुआ है देखो, since May लिखा हुआ है, since और for देखो, मतलब इनको जहन में रखना। हालांकि कुछ और टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन अभी ये इतना हम करेंगे तो हमें वो बातें समझ में नहीं आएगी, और वो इतना मतलब ज्यादा रेगुलर भी नहीं है, या यूजुअली वो इस्तेमाल भी नहीं होता। तो हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देखो सिंस में लिखा हुआ है। उसके बाद आई थिंक आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, मैंने आपको बताया था बिफोर, ठीक है ना। तो ये इनडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन है। अगर इधर अगव आता तो आप इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते, जो बी ऑप्शन है। अगर इधर अगव आता तो आप इधर बी ऑप्शन इस्तेमाल करते, सो। लेकिन ये इनडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन पढ़ा है तो आपने हैव सीन इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो मतलब we are all very pleased that the managing director days to retire next autumn। We all are very pleased that the managing director, okay, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एक है, तो उन्होंने डिसाइड किया है, has decided, बिल्कुल मतलब इजी सिचुएशन पड़ी है कि he has decided to retire next month। तो उन्होंने अभी डिसाइड किया है, ठीक है ना, डिसाइडेड टू रिटायर नेक्स्ट मंथ। तो मतलब उन्होंने एक फैसला किया है, मतलब ये एक कंप्लीशन की बात हो रही है, एक्शन कंप्लीशन की बात हो रही है। तो जब एक्शन कंप्लीशन की बात हो रही है, देखो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर लिया। और इट इज 8:30, या आप अपने लिए बोलेंगे भाई इट इज 6:10 और व्हाट्सएवर 15। तो मतलब एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग की बात हो रही है। रोशन एंड राम डैश ब्रेकफास्ट आर हैविंग ब्रेकफास्ट, देखो तो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग की बात हो रही है ना, इसीलिए देखो हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। अभी की बात हो रही है, तो अभी की बात हो रही है, तो बहुत आसान है बिल्कुल। आप प्लीज अगर सुन रहे हो आप, तो आपको कोई मतलब इसके अंदर
प्रॉब्लम नहीं होगा। या आपको बात ये समझ में आ रही होगी। ये हुआ आपका आपके सेंटेंसेस तीन दर। उसके बाद हम इसे लेके आते हैं ताकि जितने ज्यादा हो सके। उसके बाद बेटा देखो, व्हाट डज शी डू। तो जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिश करें जवाब उसी में रखें। जिसमें क्वेश्चन किया गया है जवाब उसी में रखें। अब देखो प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन किया गया, व्हाट डज शी डू, ये क्या करती है, तो जाहिर है आप जवाब पास्ट में तो नहीं देंगे ना। अब ये बात प्रेजेंट की हो रही है, क्वेश्चन प्रेजेंट में हुआ है, तो जवाब भी आप उसी वर्ब में रखें, कोशिश करें जवाब भी उसी वर्ब में रखें। हालांकि प्लेड, हैज प्लेड, इज प्लेइंग, ये पढ़े हैं सारे में, सब लग रहे हैं इसके साथ, लेकिन देखिए आपकी बात किस में हो रही है, आपसे किस जो टेंस में पूछा गया है, प्रेजेंट टेंस में पूछा गया। तो प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब है वो सी है। व्हाट डज शी डू, शी प्लेज द पियानो इन अ लोकल ऑर्केस्ट्रा, ये होगा। ठीक है, ये मतलब कुछ चीजें हैं, ध्यान में रखें। अच्छा, उसके बाद देखो, आर यू गोइंग टू सजाज पार्टी, नो आई एम स्टेइंग ओके होम टुनाइट, आई एम अ लिटिल टायर्ड। ठीक है, तो आप देखें आई एम स्टेइंग, क्योंकि ये भी क्वेश्चन किसने किया हुआ है, ये भी देखो प्रोग्रेसिव में किया हुआ है, सवाल प्रोग्रेसिव में किया हुआ है, तो जवाब भी प्रोग्रेसिव में देखो आगे। तो ये मतलब मैच करना है आपको, ऑप्शन मतलब सिमिलरिटी देखो रखनी है। उसके बाद देखो एरर है, शी इज यूजुअली मिसयूजिंग, यूजुअली अब यूजुअली कीवर्ड है, ऑलवेज देखो कीवर्ड है, तो ये रूटीन और रेगुलर के ऑप्शन को मतलब इंडिकेट करते हैं, तो उसके लिए टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट का होता है, तो इसीलिए ये एरर होगी। यानी यहाँ होना क्या चाहिए, शी यूजुअली मिस यूजेस होता, जो कि हमने नहीं दिया, तो इसीलिए ये हमारी एरर होगी। तो अब मतलब तरतीब में नहीं, लेकिन तरतीब में रखे हुए नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, अब पता नहीं चलता मुझे। अच्छा, उसके बाद 48 देखें, all classmates appreciate her as she is always scoring the highest okay marks whatsoever, always scoring, तो always score होगा ना। हाँ, always हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब कोई नेगेटिव खराब बात हो। मार्क्स मार्क्स लेना कोई खराब बात नहीं है, तो ये always scores होगा। अब ये आ गया आपका, ये आसान है, मतलब सिनोनिम और स्पेलिंग ये आप खुद कर लेना, इसमें कोई इशू नहीं है, जो रहता है बाकी में वो आपको एक्सप्लेन करवा लूं। ठीक है ना। और ये देखो शायद, हाँ ये हमारा हो गया है। इसके बाद जो नहीं हुआ है उसको देखते हैं। ये शायद तो बेटा देखो, शी कांट कम टू द फोन नाउ बिकॉज शी, नाउ दिया हुआ है इसीलिए देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने लिखा है, नाउ का कीवर्ड पड़ा है इसीलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा, उसके बाद देखो यूजुअली लिखा हुआ है कीवर्ड, क्या लिखा हुआ है, यूजुअली वर्ड दिया हुआ है, तो यूजुअली वर्ड को देखकर हमने प्ले वर्ड इस्तेमाल किया है। तो एक एक वर्ड को देखकर, जरूरी भी नहीं है कितने आसान सेंटेंस, ये पूरे पूरे लॉन्ग सेंटेंस पढ़े, जरूरत भी नहीं है। अच्छा, फरहाना इज गुड एट लैंग्वेजेस, ठीक है, तो लैंग्वेजेस हैं, शी डैश फ्रेंच स्पेनिश एंड जर्मन, मतलब वो यही लैंग्वेजेस जो है वो स्पीक करती है, क्योंकि अपने लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी है, तो स्पीक से मतलब ये रूटीन की बात हो रही है इधर, तो इसीलिए हमने इस्तेमाल किया। 44 आप देखें, who dash food in your family when your mom is away, तो मतलब ये भी रूटीन की बात हो रही है, किसकी, रूटीन की बात हो रही है। जब ये रूटीन की बात हो रही है ना, तो हम यहाँ पर भी जो रूटीन के ऑप्शन को चूज करेंगे, और वो कौन सा होगा, प्रेजेंट का, क्योंकि आप देखिए प्रेजेंट का वर्ब इधर दिया हुआ है, तो प्रेजेंट का वर्ब दिया हुआ है, तो प्रेजेंट का वर्ब हमारे पास सी ऑप्शन है, तो ये सी ऑप्शन आपका दुरुस्त हो गया होगा। ठीक है ना, दुरुस्त है, और आपने किया भी होगा ये ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट किया होगा आपने। अच्छा, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये मतलब रिसेंटली वाला हो गया, क्योंकि अब तरतीब के लिहाज से कुछ अंदाजा नहीं हो रहा है, ये शायद ना हो। हाँ, इसको देख लें थोड़ा, मतलब स्टेटिव वर्ब्स हैं। बेटा देखो, आई एम स्मेलिंग द फिश टू सी इफ इट इज ओके, मैंने कहा कि जब आप सेंस अप्लाई करें किसी चीज को, मतलब आप सेंस अप्लाई करें, तो वो प्रोग्रेस नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी आपका प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये देखिए खुद स्मेल कर रहा है, उसकी स्मेल फिश की आ नहीं रही, खुद स्मेल कर रहा है,
तो आप देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में मतलब आप लगा सकते हो। लेकिन ऐसे वही हम कहेंगे फिश स्मेल्स, ठीक है ना, फिश स्मेल्स अनप्लेजेंट। अब देखो हम स्मेलिंग नहीं इस्तेमाल, क्योंकि उसकी खुद की स्मेल आ रही है, हम ऐसे नहीं कर रहे। तो आपका ये स्टेट है उसकी स्मेल की, तो इसीलिए हमने प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद 34 को देखें, वाई डैश एवरीबॉडी डैश एट द स्काई इज लुकिंग एवरीबॉडी एट द स्काई, क्योंकि इसके अंदर एवरीबॉडी की बात हो रही है और प्रोग्रेसिव की सिचुएशन शो हो रही है, मोस्टली कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा देखो स्टेटिव वर्ब है नॉन प्रोग्रेसिव, इसीलिए अपीयर्स आया, इट अपीयर्स मतलब हमने इस्तेमाल किया है स्टेटिव। इधर देखो कोई सेंस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और फिर देखो द पीपल इन द फ्लैट अप स्टेयर्स, ये पीपल प्लूरल है इसीलिए हैव आएगा। यूज एवरी नाइट दिस वीक, कीवर्ड कौन सा है, दिस वीक का कीवर्ड लिखा हुआ है ना, इसीलिए हमने इस्तेमाल किया हैव। जो वो डिस्टर्ब्ड दिस वीक, मतलब वो वीक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब कंप्लीट नहीं होता ना टाइम फिनिश्ड, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज इतना काफी है मेरे ख्याल, मैंने सारे आपको करवा दिए होंगे। और अब आगे जो है वो आप प्लीज कुछ देखना, कल से इंशाल्लाह हम पास टेम्परेचर शुरू करेंगे इसी तरीके से, और पढ़ते रहे प्रैक्टिस में, इंशाल्लाह आपको रिवीजन भी करवाऊंगा इन सब चीजों की, ठीक है ना, करवाऊंगा बिल्कुल। सभी को लिख दें। अच्छा बेटा, पहले तो आपको टेस्ट के हवाले से मैं बता दूं, जो कल टेस्ट हुआ था उसकी फिर एक्स्ट्रा क्लास आज मैं लूंगा 4 बजे। तो जिन बच्चों को कोई डिफिकल्टी है, मतलब क्वेश्चंस के अंदर या कंसेप्ट के अंदर, या जिनकी मिस्टेक्स वगैरह हुई है, तो वो अटेंड कर सकते हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं, मतलब जिनको पढ़ना चाहते हैं वो। तो 4 बजे क्लास होगी, 4 से लेकर 5 बजे तक। और अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं वो दूसरे दिन में पढ़ा दूंगा आप लोगों को। तो बेटा 4 बजे का टाइम है, दोबारा आपको मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास का, जिसमें कल का जो पेपर हुआ था उसको हम हल करेंगे। अच्छा, अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ द आर्बिटल, चैप्टर 3 का टॉपिक है ये। और जो पीएमसी के टॉपिक्स हैं उनके अंदर देखो, एक जो थर्ड चैप्टर का था वो प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड था। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ आर्बिटल है। दरमियान वाले टॉपिक नहीं है, मगर फिर भी मैंने आपको दरमियान वाले सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, तो उनकी भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी जब टेस्ट होगा इसका। तो देखो आर्बिटर का कंसेप्ट देखें, बोहर की हमने थ्योरी पढ़ी है। बोहर कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। अच्छा, उसके बाद और बोहर ये भी कहता है
कि इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और पोजीशन को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और मोमेंटम को हम एक्यूरेटली एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को। और अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि डी ब्रोगली ने कंसेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर है, कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक नेचर रखता है। और अच्छा, उसके बाद हेसेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया, जो समझे बोहर के जो सर्कुलर ऑर्बिट का नजरिया था उसका कंट्राडिक्शन में है, उसके मुखालफत में है। ठीक है, जो रिजेक्ट करता है बोहर के सर्कुलर ऑर्बिट के नजरिए को, वो कहता है इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, टू डिटरमाइन, मालूम करना, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही वक्त दोनों चीजें मेजर नहीं हो सकती हैं। मोमेंटम और पोजीशन को आप एक्यूरेटली मेजर कर नहीं सकते हैं। अगर आपने पोजीशन को मालूम कर लिया, ठीक है, और पोजीशन को मालूम करने के लिए आपको पता है कि विजिबल रीजन, तो विजिबल जो होती है ये स्पेक्ट्रम या विजिबल जो लाइट है वो यूज नहीं होगी, क्योंकि उसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, वो इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर पाएगी। तो उनको लोकेट करने के लिए एक्स रेज चाहिए होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ के रेज चाहिए होते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ के रेज उसको लोकेट कर सकते हैं। और जब एक्स रेज जो शॉर्ट एनर्जी के वेव्स हैं इलेक्ट्रॉन को लोकेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जाकर हिट करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी मोमेंटम को चेंज कर देगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगी, तो मोमेंटम अनसर्टन हो जाएगी। अगर अपने पोजीशन को मालूम कर लिया, इलेक्ट्रॉन को लोकेट भी कर लिया, ठीक है, जब जैसे एक्सरेज उसको हिट करेंगे उसकी पोजीशन को मालूम करने के लिए, तो मोमेंट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी एक्सरेज की, और जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो जाएगी, जो मोमेंटम है एम वी, वो भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर आप एक्सरेज लॉन्गर वेवलेंथ वाले यूज करेंगे ताकि मोमेंटम चेंज ना हो, तो मोमेंटम तो आप मालूम कर लेंगे मगर फिर पोजीशन को लोकेट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब है दोनों चीजों को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेसेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, मोमेंटम और पोजीशन को। अच्छा, उसके बाद आगे जो काम हुआ था इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर पे काम हुआ, जिसमें श्रोडिंगर्स ने काम किया, हेसेनबर्ग ने भी और डायरेक्ट ने भी इलेक्ट्रॉन की जो वेव लाइक नेचर है उस पर काम किया। और सबसे जो बेहतर काम था वो श्रोडिंगर्स का था। श्रोडिंगर्स ने एक वेव इक्वेशन ड्राइव की थी। वेव इक्वेशन किसके लिए? फॉर द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो उसने आखिर में कंक्लूजन निकाला ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जो स्टर्निंग वेव है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एक स्टर्निंग वेव है अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशन। और उसने आर्बिटर का भी कंसेप्ट दिया। मतलब आर्बिटर का जो कंसेप्ट है वो श्रोडिंगर से मिल रहा है। श्रोडिंगर्स की आखिरी जो कंक्लूजन थी वो यही है कि आर्बिट की कोई प्रॉपर पिक्चर नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई मखसूस पाथ नहीं है जो बोहर ने कहा था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहीं भी हो सकता है, और जहां जिस जगह पे जिस रीजन पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे इसको हम कहते हैं आर्बिटर। तो उसने आर्बिटर की जो डेफिनेशन बताई वो ये कहता है रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन न्यूक्लियस के गिर्द, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा हों उस रीजन को हम क्या कहते हैं? आर्बिटर। द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, किसके गिर्द? न्यूक्लियस गिर्द। वेयर प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, उसको हम कहते हैं आर्बिट्री। या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या सॉरी चार्ज क्लाउड, चार्ज क्लाउड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चार्ज क्लाउड होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन है, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, बेटा रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is maximum,
इज ऑर्बिटल, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन surrounding the nucleus, या चार्ज spreads around the nucleus, it's called electron cloud. इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहा जाता है। तो बेटा ये है ऑर्बिटल। तो श्रोडिंगर्स की जो वेव इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है फाइनल वो यही है कि रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, न्यूक्लियस के वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा हो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। और एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए बेटा, एक ऑर्बिटल है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है या एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी पूरी पिक्चर देने के लिए 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। मतलब एक ऑर्बिटल है उसको कंप्लीट डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। वो 4 क्वांटम नंबर, उनमें 3 क्वांटम नंबर जो हैं उनका कंसेप्ट श्रोडिंगर की इक्वेशन से आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़्यूमथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका कंसेप्ट उसकी श्रोडिंगर की इक्वेशन से नहीं आता। बेटा 3 क्वांटम नंबर समझे श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से आते हैं। श्रोडिंगर की वेव जो इक्वेशन है उसी से उनका कंसेप्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली जो क्वांटम नंबर्स हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स हैं। देखो क्वांटम नंबर आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल नंबर होंगे, और वो न्यूमेरिकल नंबर पूरी पिक्चर देते हैं ऑफ एन एटम, एटम की पूरी पिक्चर के बारे में बता देते हैं। इसका मतलब है वो आपको एनर्जी के बारे में बताएंगे, वो ऑर्बिट की साइज के बारे में बताएं, ऑर्बिट की साइज के बारे में बता देंगे, ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में बता देंगे, शेप ऑफ द सब एनर्जी लेवल के बारे में बता देंगे, सब एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, इलेक्ट्रॉन की जो ओरिएंटेशन है इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्बिटर की जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसका मतलब है टोटल जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूमेरिकल नंबर से मिलेगी आपको। वो न्यूमेरिकल होंगे तो न्यूमेरिकल नंबर, वो आपको पोजीशन बता देंगे इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना नजदीक है, उसकी कितनी एनर्जी है, उसकी साइज कैसी है, उसका शेप कैसा है, ठीक है। ऑर्बिटर की ओरिएंटेशन के बारे में बता देंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बता देते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स जो हैं जो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन बताते रहे, ये एक्सेप्टेड पिक्चर ऑफ द एटम, मतलब एटम की पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। अगर वो न्यूमेरिकल नंबर आपको दिए जाएंगे तो न्यूमेरिकल नंबर से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एटम के बारे में, ठीक है। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो इसका मतलब है एक ऑर्बिट को डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। तो बेटा क्वांटम नंबर क्या है, न्यूमेरिकल नंबर्स हैं। अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जिसको हम एन से शो करते हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 4, मतलब न्यूमेरिकल नंबर। अगर आप अज्यूमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखेंगे जो एल से शो होता है और उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटो क्वांटम नंबर की वैल्यू देखेंगे वो भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, स्पिन क्वांटम नंबर वो भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं ये बेटा, न्यूमेरिकल नंबर्स which provide, जो प्रोवाइड करेंगे आपको
acceptor picture of an atom. एटम के एक्सेप्टर पिक्चर के बारे में बता देंगे, मतलब उसकी एनर्जी के बारे में, उसकी साइज के बारे में, उसके सब एनर्जीलेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और उसके बाद उसके अंदर कितने आर्बिटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसका मतलब है एक आर्बिटर को डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। 4 क्वांटम नंबर मिलने से, अगर 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज मिलेंगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन हम बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है, कौन से शेल में मौजूद है, कौन से सब एनर्जी लेयर में मौजूद है, और उस सब एनर्जी लेयर्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन कौन से मतलब ऑर्बिटल में मौजूद होगा, ये अब वहां तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी बंदे की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी बंदे की शहर के अंदर, तो पहले तो सिटी का नाम चाहिए हमें, पहले शहर का नाम का पता होना चाहिए कि बंदा किस शहर का है। शहर के बाद उस मोहल्ले का पता होना चाहिए कि भाई कौन से मोहल्ले का रहने वाला है ये। अच्छा, उसके बाद गली का नंबर चाहिए हमें, उसके बाद घर का नंबर वगैरह चाहिए, तो इसका मतलब है हम बंदे तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी जो 4 काउंटर नंबर हैं, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। मतलब अगर क्वांटम नंबर गिवन हो तो इसका मतलब है हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसके बारे में, एटम के बारे में। तो ये न्यूमेरिकल नंबर्स हैं जो एक्सेप्टल पिक्चर बता देंगे किसके बारे में, एटम की एक्सेप्टल पिक्चर। ठीक है, तो 4 क्वांटम नंबर्स हैं बेटा, 4 क्वांटम नंबर्स हैं। जो सारी इंफॉर्मेशन बता देंगे एटम के बारे में। तो पहले आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एम, सिंबल एन। बेटा उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो एन है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो एन है। इट डिस्क्राइब साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ये आपको ऑर्बिट की साइज बता देगा और एनर्जी बता देगा। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज। जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्बिट का साइज भी बढ़ेगा,